this is Dr. Arun Kumar Srivastava. A very crucial topic I'm going to raise before you. What is the geographical features of Tibet and what is the role of the India to just make the Tibet release from the very imperialistic hands of the China. So as you can see on your screen, that is the actual geographical features of the Tibet, which I'm going to present before you. You can watch what is the Tibet. So this is all about the Tibet, a very huge area. But if we just discuss about the Kham, this green zone, and very light green zone is the Siachen zone. In this map, you can just see that orange zone is a complete free Tibet area. But the China's imperialistic policy is very aggressive to capture the Tibet and to show the world that Tibet is a part of the China, which is absolutely not correct. India, who is the bosom friend of the Tibet, is ready to provide the republican status to the Tibet. So geographical features, cultural features, cultural history, and cultural fusion between India and Tibet is ready to expose the China. Though we know that UNO and USA both are ready to provide the Tibet a complete republican status. But the problem is that the imperialistic approach, the colonial approach of the China is not ready to provide freedom to the Tibet. India, who is the follower of the Vasudhaiva Kutumbakam philosophy, as well as we introduced during the independence the Panchashil Siddhant or the Gutanirpeksha movement, which emphasized that every country should just try to maintain the dignity of others. No one is right to snatch the land of others. China, which was very supportive of that philosophy, and India, who also provided good support to the China to have a republican status. But the scenario changed that in respect of the Tibet, China changed his philosophy. China crossed the line of the Panchashil philosophy, crossed the treaty between the India and the China, and ready to capture the entire Tibet. But you know that we, the Indian, are true friends of the Tibet. Our cultural dignity, our cultural values, our ethical values, our geographical boundaries, our economic policy is surrounded with each other. As you know that Tibet is the country which is surrounded with the pastoral economy, but India is the only country is ready to maintain the economic relation with the Tibet with full dignity of the Tibet. We had a good relation. We have a good relation with the Tibet, and we wanted to provide that republican status to the Tibet, but we were not ready to just snatch the little bit land of the Tibet. Even then, India is before the Tibet against the China. So here we proved so many times
in respect of the British period. And after the independence, openly India supported the China, and simultaneously we supported the dignity and the uniqueness of the Tibet. Though there is no difference between the culture of India and the Tibet, we are follower of the Buddhism, we are follower of the same culture, but we are not ready to avoid the dignity of each other. But the China is the dual enemies of both countries. China wanted to snatch the land of the India. Simultaneously, China wanted to abolish the importance and dignity of the Tibet and captured the entire zone of the Tibet. So this is the topic of the today's my lecture is what was the actual history of the Tibet? What is the relation between India and Tibet? What India did in past for the favor of the Tibet? What we did to stop the Chinese imperialistic approach, Chinese colonial development, and what we are doing in the 21st century in favor of the Tibet against the China. So what are the relationship between India and Tibet, and what type of the actions Indian government taken against the China in favor of the Tibet. So this is the topic of the today's lecture, the Tibet history. Okay, so now I'm going to start some slides. Want to show some slides in Hindi, as well as I want to describe the complete topic in Hindi to just know the people of the India, what is the exact notion of India in favor of the Tibet. Okay, so let's see the next slide. तिब्बत की भौगोलिक स्थिति पर जब हम बात करते हैं तो 32 अंश 30 मिनट उत्तर अक्षांश लैटिट्यूड तथा 36 अंश 0 मिनट पूर्वी देशांतर लॉन्जिट्यूड तिब्बत का मध्य एशिया के उच्च पर्वत श्रेणियों के मध्य कुनलुन और हिमालय के मध्य स्थित है। जैसा आप देख सकते हैं नक्शे में, तिब्बत कश्मीर से भी जुड़ा हुआ है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये क्षेत्र लगभग 47,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। यहाँ की मुख्य नदियां हवांगो, मेकांग बहुत ही सुंदर हैं और यहीं से निकली हुई हैं। हमारी सिंध का भी मानसरोवर क्षेत्र यहीं पर है। कैलाश की अस्मिता भी यहीं है। शिव की नगरी भी यहीं है। यहीं से हमारे धार्मिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। जब हम वाह्य तिब्बत की उबड़-खाबड़ भूमि की मुख्य नदी यरलुंग और तंसंगपो ब्रह्मपुत्र जो मानसरोवर झील से निकलकर पूर्व दिशा की ओर प्रभावित होती है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर भारत एवं बांग्लादेश में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी घाटी के उत्तर में खारे पानी की छोटी-छोटी झीलें हैं जिनको नमसो और तेंगरी नोर मुख्य है। इसमें इस अल्प वर्षा एवं सौ अल्प कृषि योग्य पंगसंगपो की घाटी में वहां के प्रमुख नगर लहासा, ज्ञानस्ते और शिवात्से आदि स्थित है। ये बड़ा खूबसूरत सा क्षेत्र है जिसे सैलानी देखना चाहते थे शुरू से ही, लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन हमारे प्रयासों ने और संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप ने 70 के दशक में सैलानियों के लिए क्षेत्र खोल दिया और आज ये बहुत ही प्रभावी क्षेत्र है जिसे बाहर के लोग आते हैं। यहाँ याक नामक पशु देखते हैं आप, जो माल ढोने के लिए बहुत ही खूबसूरत पशु है और साथ ही साथ दूध देने वाला पशु है, जिसको कि पेस्टोरल इकोनॉमी का हम पशुपालन अर्थव्यवस्था का एक अपने आप में मेरुदंड कह सकते हैं। भेड़ बकरियां आदि यहाँ के लोग पालते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, मंगोलिया से लेकर तिब्बत तक पेस्टोरल इकोनॉमी का आज भी दबाव है, यानी कि सर्विस क्लास एग्रीकल्चर और जिसको कहते थे ट्रेड एंड कॉमर्स, इसमें काफी पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र है। और क्यों ना कर पिछड़ा हो जाए, चीन की विस्तारवादी नीतियों ने इसको कभी पनपने ही नहीं दिया। भारत तो सदैव इसको
मुख्य धारा में लाना चाहता था और इसे एक गणतंत्रीय क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहता था। लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति के आगे कहीं न कहीं हम पिछड़ गए और हमारे साथ-साथ हमारा सहयोगी तिब्बत भी पिछड़ता चला गया। पूर्वी क्षेत्र में कुछ वर्षा होती है एवं 1200 फीट की ऊंचाई तक वन पाए जाते हैं। यहाँ की कुछ घाटियां 5000 फीट ऊंची हैं, जहाँ किसान कृषि करते हैं। जलवायु की शुष्कता उत्तर की ओर बढ़ती जाती है और जंगल के स्थान पर घास के मैदान अधिक पाए जाते हैं। जनसंख्या का घनत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये भी चीन की विस्तारवादी नीतियों का नतीजा है कि वहां से बहुत से लोग भागकर भारत चले आए और हमने भी दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत किया। उनका स्वागत तो हमने किया, लेकिन कहीं न कहीं उनकी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने में अभी हम पूरी तरीके से परिणाम तक नहीं पहुँच पाए हैं। कृषि और पशुपालन का क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है और मुख्य रूप से इनकी अर्थव्यवस्था यहाँ केंद्रित है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, 2000 से पहले जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, मैंने वहाँ की यात्रा करी थी और मैंने वहाँ के बहुत ही बीहड़ क्षेत्र में जाके भागी चौरा, धारचूला जैसे क्षेत्र में जाकर काफ़ी समय बिताया था। और मैंने खुद देखा, वहाँ के लोगों ने मुझे पहाड़ी भाषा में, कुमाऊनी भाषा में बताया कि तिब्बत के लोग आज भी यहाँ आकर नमक बेचते हैं और हम लोग के साथ उनका एक बार्टर सिस्टम चलता है, यानी कि हम लेन-देन एक्सचेंज कर लेते हैं। वो हमसे चमड़े और ये सब चीज़ें, कई वस्तुएँ, बर्तन वगैरह ले लेते हैं। हम उनसे नमक खाले और क्या कहते हैं, ऊन की बहुत सी वस्तुएँ ले लेते हैं। तो बहुत खूबसूरत संबंध आज भी बने हुए हैं, लेकिन इस देश का वास्तविक विकास नहीं हो पा रहा है। इतिहास के पन्नों पर अगर झाँकें, चूँकि मैं एक इतिहासकार हूँ, इतिहास के पन्नों में बिना झाँके मैं रह नहीं सकता। और सही बात तो है, इतिहास ही तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर की अपने आप में एक पुरातात्विक और साहित्यिक रूप से एविडेंस या साक्ष्य को रखने के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। मध्यकाल में ही यहाँ पर नेपाल से धर्मपाल बौद्ध भिक्षुक गए थे और हमारे यहाँ से दीपंकर श्रीज्ञान, अतिश पदम संभव जैसे लोग बहुत पहले से ही जाते थे वहां पर और वहां पर बौद्ध धर्म को रसा बचा दिया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, वहां के लोगों ने बौद्ध धर्म को आत्मसात कर लिया। जब मध्यकाल में भारत में बौद्ध धर्म पिछड़ रहा था और भागवत धर्म प्रभावित हो रहा था, हमने बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार स्वीकार लिया था और भागवत धर्म के साथ कहीं न कहीं समीचीनता हो गई थी बौद्ध धर्म की। उस समय बौद्ध धर्म पृथकता बना रहा था तिब्बत में और तिब्बत में पूरी तरीके से एक पृथक धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त कर गया। इसी कारण आज भी वहाँ 80% के करीब लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। 19वीं शताब्दी में तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। लद्दाख, कश्मीर के शासक तथा सिक्किम पर अंग्रेजों ने आधिपत्य जमा लिया, लेकिन तिब्बत पर वो अंग्रेज लोग अपना आधिपत्य नहीं जमा पाए। ये बात मैं कर रहा हूँ हेस्टिंग से लेकर डलहौजी तक की। कारण ये था कि तिब्बतियों को नेपालियों का बहुत बड़ा समर्थन था और वो नेपाली, वो गोरखा जो तिब्बत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े थे और जिन्होंने अंग्रेजों को वहां पर अपनी सत्ता नहीं विस्तारित होने दी, उसके ऋणी हो गए तिब्बतवासी। बाद में नेपालियों ने कहीं न कहीं यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया और कहीं न कहीं तिब्बत का बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें विलय होने लगा नेपाल के साम्राज्य में। इस विलयकारी औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी स्थिति को रोकने के लिए तिब्बत ने एक गलती कर दी, इतिहास में जो दर्ज है, उसने चीन से सहायता मांगी और चीन ने ये सहायता उसे खुलकर दे भी दी। लेकिन चीन ने इस सहायता को देने के बाद उसे नेपाल से तो मुक्त करा दिया, लेकिन फिर चीन, जो कभी खुद साम्राज्यवादियों का शिकार था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकार था, वो खुद ही साम्राज्यवाद पर चलने लगा और तिब्बत के एक-एक क्षेत्र का हस्तगत करने लगा। यहाँ से ही तिब्बत का वास्तविक पतन शुरू हुआ, जिसको हम कह सकते हैं ये 20वीं शताब्दी का पहला दशक था। उस दौरान लॉर्ड कर्जन ने भी तिब्बत पर कई दबाव बनाए, कई कई प्रकार के ऐसे आर्थिक दबाव बनाए कि तिब्बत का कुछ हिस्सा छीन कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दें। उधर चाइना तिब्बत का को ध्वस्त करने में तुला हुआ था, वो पूरी तरीके से। ऐसे में भारत जो स्वयं ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जूझ रहा था, असहयोग और सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे क्रांतिकारी आंदोलन हमारे यहाँ, समाजवादी आंदोलन
हमारे यहाँ चल रहे थे। और तिलक, भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे थे, और आप जानते हैं गांधी के अनवरत आंदोलन चल रहे थे। ऐसे में हम अपने देश को मुक्त नहीं करा पाए थे। इस कारण हम तिब्बत की मदद करने में कहीं न कहीं चूक गए, या कहिए हम इस स्तर में ही नहीं थे, क्योंकि हम खुद ही नहीं स्वतंत्र थे, तो हम तिब्बत की क्या मदद करते। लेकिन आज़ादी से पूर्व एक बार राहुल सांस्कृत्यायन जी ने वहाँ की यात्रा करी थी, बहुत ही सुंदर संस्मरण अपने लिखे हैं, जिसे मैंने अपनी पुस्तक में भी काफ़ी नोट किया है, और उसको काफ़ी एम्फसाइज़ किया है, काफ़ी उस पर जोर दिया है कि किस तरीके से दोनों ही संस्कृतियाँ आपस में मिलती हैं, भारत और तिब्बत की। लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ, तो भारत ने तिब्बत की खुलकर मदद करी। हम इंडिपेंडेंट थे, हम भी आर्थिक रूप से बहुत तंग थे। हमारे यहाँ भी बाहर से, विदेश से मँगाया गया गेहूँ खाया जाता था। हम भी अभी संपन्न नहीं हुए थे। बहुत अधिक कई समस्याओं से ग्रसित थे। इस पर भी हमने अपने मित्र तिब्बत राष्ट्र का पूर्ण रूप से सहयोग किया, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। पूर्वी भाग, जिसमें वर्तमान चीन, चिंगहई एवं सिचुआंग प्रांत हैं, इसे अन अंतर्वर्ती इन्नर तिब्बत कहा जाता है, और पश्चिमी भाग, जिसे बौद्ध अनुयायी शासक लामा के हाथ में है, इसे बाह्य तिब्बत, आउटर तिब्बत कहा जाता है। हमने खुलकर 50 के दशक में तिब्बत के लिए आवाज उठाई। हमने 1959 में दलाई लामा को भारत में बस जाने की अनुमति दी, और उन्हें पूरा सहयोग दिया। निर्वासित जीवन करते हुए भी वो हमारे यहाँ रहकर, आप जानते हैं, धर्मशाला से वो सीधे अपने तिब्बत की सरकार को निर्वासित रहते हुए चलाते हैं, और जिसमें पूरा पूरा समर्थन भारत सरकार का है। यदि हम इसको और आगे देखते हैं, तो कुछ और तथ्य भी सामने आते हैं। वो तथ्य ये है कि दलाई लामा के सहयोग के बाद भी हम अभी भी दलाई लामा को निर्वासित जीवन जीने पर मजबूर करे हुए हैं, यानी कि हम अभी भी चीन को पीछे की ओर धकेल नहीं पाए हैं। चीन हमारे भी क्षेत्रों पर, अरुणाचल प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों पर, सिक्किम और बहुत से क्षेत्र जो कश्मीर से जुड़े हैं, वहाँ पर अपने दावे ठोकता रहता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा डोकलाम का किस्सा। अभी तवांग क्षेत्र पर अपना अधिकार जुड़ा करता है। वो कभी-कभी अरुणाचल में वीज़ा देने की बात करता है। तो ऐसी बातें करने की वजह से चीन के साथ हमारी कोई भी कूटनीति सफल नहीं हो रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की उदासीन नीति ने चीन को कहीं न कहीं जाकर मजबूत कर दिया। हम जानते हैं, पंचशील सिद्धांत एक आदर्शवादी सिद्धांत था। गुट-निरपेक्ष आंदोलन एक बहुत ही आदर्शपूर्ण सिद्धांत था। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शक्ति का विकास चल रहा था, उसमें पंडित नेहरू कहीं न कहीं चूक गए। उन्होंने अ, आणविक शक्ति की तो बात कही, लेकिन वो चीन को अंदर से भाप नहीं पाए थे, और चीन अपना विकास करता चला गया, और हम भी विकास की श्रेणी में थे, लेकिन इस बीच तिब्बत बीच में ही घुट रहा था। हमने 1959 में दलाई लामा को यहाँ बस जाने की अनुमति दी, और निर्वासित रहते हुए अपने देश की सरकार चलाने में पूरा सहयोग दिया, जो आज तक ये कायम है और चलता रहेगा। तब तक चलेगा जब तक हम तिब्बत को एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र करा के दलाई लामा को सौंप ना दें। ये हमारा वचन है, और ये हमारा एक समग्र भारतीयों की इच्छा भी है। और हमारा, जो कहते हैं, एक बूज़म फ्रेंड्स, जो आत्मिक रूप से हमारा मित्र तिब्बत राष्ट्र है, तो हम, जब तिब्बत स्वतंत्र होगा, तो हमारी सीमाएँ बदलेंगी, हमारा हिमालय सुरक्षित होगा, हमारी हिमालय का पर्यावरण सुरक्षित होगा, हमारा मानसरोवर मुक्त होगा, हमारा कैलाश मुक्त होगा, और ये सारे लक्ष्य तभी संभव हैं जब तिब्बत स्वतंत्र हो, जो हमारा मित्र राष्ट्र है। परंतु बल प्रयोग द्वारा चीन ने इसे दबा दिया। अत्याचारों, हत्याओं आदि से किसी प्रकार बचकर दलाई लामा नेपाल पहुंचे। नेपाल से भागकर वो भारत आए, और उसके बाद से ही तिब्बत और चीन के बीच में भारत भी कहीं न कहीं चीन के निशाने पर आ गया, कि चीन को ऐसा लगने लगा कि तिब्बत को भारत सहयोग दे रहा है, जो तिब्बत की विस्तारवादी नीति के आगे कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोड़ा है। मैंने आपके सामने एक नक्शा, मानचित्र प्रस्तुत किया है। आप इसमें देखेंगे, ये अक्साई चीन का क्षेत्र है।
जो चीन ने हड़पा हुआ है हमारे यहाँ का, और ये ऊपर का तिब्बत का क्षेत्र है। 1962 के बाद चीन ने हमारे इस बहुत से बड़े क्षेत्र, जिसमें तिब्बत का क्षेत्र भी आता है, और ये देखेंगे आप डोकलाम का एरिया है, और यहाँ वो अक्सर दावे करा करता है अरुणाचल क्षेत्र में। मैकमोहन लाइन जो अंग्रेजों के समय निर्मित हुई थी, उसे वो नहीं मानता है। उसका कहना है ये अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित सीमा थी भारत और चीन के बीच में। इसलिए वो विस्तारवादी नीतियों के चलते तिब्बत को तो निगल जाना चाहता है, और भारत की सीमाएं सीधे अपने से जोड़कर भारत के सीमावर्ती उत्तरी क्षेत्र पर कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमने का प्रयास करता है, और उसका ये प्रयास संक्षिप्त रूप में 1962 में सफल भी हो गया था। लेकिन 1965 के युद्ध के बाद जब हमने पाकिस्तान को हरा दिया, हमारी नीतियां मजबूत हुई, हमारी सेना मजबूत हुई, हमारी राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक इच्छा शक्ति बढ़ी, तो हमने चीन को कई बार 60 के दशक में ये बता दिया कि हिंदुस्तान 62 वाला नहीं है। यानी 60 के दशक की जब बात करता हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ 1967 से 69 के बीच में। उस समय की सरकार ने भी चीन को कई बार ये बता दिया कि 62 की गलती अब हम दोहराएंगे नहीं। उसके बाद 70 में जब हम आणविक शक्ति हो गए, और उसके बाद आणविक शक्ति होने के बाद हमने 71 में बांग्लादेश को अलग करवा दिया, और हमारे ही प्रयासों से एक पाकिस्तान टूटा, और हमारे ही प्रयासों से बहुत जल्दी तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। बस एक जन चेतना, जन जागरण की आवश्यकता है। इसी को लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो धार्मिक संबंध है तिब्बत के साथ, हमारे सामाजिक संबंध है, हमारी एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, और एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। इस वजह से ये संबंध अक्षुण्ण है, हमेशा की तरह चलने वाले संबंध है ये। मैंने एक बार बोला था, जिस तरीके से मुसलमानों को हज यात्रा करने की इच्छा होती है, वैसे तिब्बतवासी भी गया की यात्रा करना, श्रावस्ती आना, सारनाथ आना, उनके लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य मात्र होता है। तो उनके और हमारा भी अंतिम लक्ष्य एक बहुत महान चारों धाम के साथ साथ हम कैलाश की यात्रा करना भी अपने जीवन का वो लक्ष्य मानते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिब्बत की स्वतंत्रता से ही हम वास्तविक भारतीय, जो भारतीय संस्कृति की एक विशाल, एक महान विचारधारा है कि हर भारतीय को धर्म, अर्थ, काम और उसके बाद मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए, और हमारे मोक्ष का साधन है कैलाश पर्वत, मानसरोवर की मुक्ति। तो इसके लिए तिब्बत की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है, तिब्बत की राष्ट्रीयता बहुत आवश्यक है, तिब्बत को गणतंत्रीय स्तर दिलवाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जन आंदोलन चलाना आवश्यक है। ये कोई युद्ध के द्वारा नहीं हो सकता, ये जन क्रांति है, ये मानवीय सोच से हो सकता है, ये समन्वय से हो सकता है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वार्तालाप से हो सकता है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से हो सकता है, ये विश्व स्तरीय, विश्व पृष्ठभूमि पर एक साथ खड़े होकर आवाज उठाने से हो सकता है, ये चीन को कमजोर करने से हो सकता है, चीन की विस्तारवादी औपनिवेशिक विचारधारा को ध्वस्त करके हो सकता है, और ये तब हो सकता है जब हमारा युवा, हम सब भारतीय 35 करोड़, 135 करोड़ से अधिक भारतीय अगर खड़े होकर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ खड़े होकर चीन को मजबूर कर दें कि वो तिब्बत को स्वतंत्र करे, दलाई लामा की सरकार स्थापित हो, तिब्बत को गणतंत्रीय राष्ट्र का दर्जा मिले, और हम बहुत कुछ हद तक हिमालय की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और मानसरोवर की मुक्ति, कैलाश की मुक्ति जैसे अपने परम लक्ष्य तक प्राप्ति कर ले, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, और ये लक्ष्य तभी संभव है जब तिब्बत को स्वतंत्र करा दे। तिब्बत की संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न है, अंग है। आप देख सकते हैं ये तिब्बतवासी हैं, और ये भारत की भूमि पे ही नृत्य कर रहे हैं। भारत में कई स्थानों पर कई लाइब्रेरीज, कई पुस्तकालय, कई शोध संस्थाएं और कई विश्वविद्यालयों में हम तिब्बत के विद्यार्थियों को पूरा सहयोग देते हैं। हम तिब्बत का मेला लगवाते हैं, हम तिब्बत के लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, हम उनको वो स्थान दिए हुए हैं कि हमारे वैश्विक स्तर पर हमारे अभिन्न अंग के रूप में है,
और हमारी सांस्कृतिक स्थापना हो चुकी है। हम सांस्कृतिक रूप से एक हैं। मैंने बोला था मैं पिथौरागढ़ और कुमाऊं मंडल की यात्रा पर गया था, तो मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते थे जिनको देखकर ये लगता भी नहीं था कि ये तिब्बती हैं या ये भारतीय हैं, ये कुमाऊं मंडल, हम सब एक से लगते हैं। हमारा पूरा का पूरा हिमाद्री का क्षेत्र या आंतरिक हिमालय का क्षेत्र जो है उसकी पूरी बेल्ट ये बताती है कि हमारी संस्कृति एक है। यही बात जब मैं आगे उठाता हूँ तो सामने आता है कि तिब्बत में अभी भी बौद्ध धर्म के 5 संप्रदाय जीवित हैं। हमारे यहाँ बौद्ध धर्म में विष्णु को अब उनका नवा अवतार मान लिया गया और बौद्ध धर्म कहीं न कहीं एक अल्पसंख्यक जैसा हो गया, लेकिन बौद्ध धर्म का को बहुसंख्यक रूप में मान्यता जो मिली है वो तिब्बत में मिली है। तिब्बत में आज भी बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के 5 उप संप्रदाय अंगमा, कदयुद, सक्या, गलेत्सा, जोंगन आज भी जीवित हैं। कभी ये पूरा का पूरा उत्तर एशिया और मध्य एशिया में फैला हुआ था, यानी कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, चीन, तिब्बत, यहाँ तक कि मध्य एशिया तक ये फैले थे, लेकिन आज भी तिब्बत इन पांचों संप्रदायों को अपने भीतर संजे हुए है। इस प्रकार तिब्बत और भारत के बीच एक आंतरिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, सामाजिक संबंध है और हम एक ही हैं। लेकिन हम अक्षुण्ण रूप से ये चाहते हैं कि तिब्बत को एक राष्ट्रीय स्तर मिले, तिब्बत को गणतंत्रीय स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिले और हम उसके सबसे परम मित्र हों, क्योंकि हमारी सीमाएं उसकी सीमाएं तब एक हो जाएंगी। चीन की विस्तारवादी नीतियों को हम रोकेंगे। हमारे प्रयास 1947 से चल रहे हैं, हमारे प्रयास 1951 से 54 तक चले। हमारे प्रयासों का नतीजा था ही कि हमने दलाई लामा को यहाँ पर बस जाने के लिए और यहाँ से अपनी सरकार चलाने के लिए पूर्णतया सहयोग किया। हम आज भी 1962 से 77 के बीच को जब छांट के देखते तो भारत चीन युद्ध के दौरान भारत ने तिब्बती विरोध का समर्थन किया, तिब्बत में उपस्थित चीन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाया। भारत ने 1963 में तिब्बत के नए संविधान की घोषणा करने में दलाई लामा को नहीं रोका। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम दलाई लामा ने एक नवीन संविधान का निर्माण किया जिसके पीछे मेरुदंड था भारत। 1986 से 99 तक हमारी जो 88 में एक नई नीति थी तिब्बत के लिए। 1988 में भारत ने चीन के क्षेत्र के भाग के रूप में तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र को मान्यता प्रदान की और दोहराया कि वह तिब्बतियों को भारत में चीनी विरोधी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं करता। तो इस प्रकार हमने सारी अस्मिता को ध्यान रखते हुए, दूसरे देश की अखंडता को ध्यान में रखते हुए तिब्बत को पूरा सहयोग दिया है आज तक और आगे भी देते रहेंगे। इसीलिए हमने भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना भी करी और जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम तिब्बत को अनवरत प्रांतीय रूप में, राष्ट्रीय रूप में, क्षेत्रीय रूप में, जिला स्तर पर और तदोपरांत विश्व स्तर पर हम तिब्बत को सहयोग करें, जिससे तिब्बत एक गणतंत्र बने और हमारी सीमाएं तिब्बत से छुए, ना कि चीन से। तिब्बत की संस्कृति आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत संस्कृति है यहाँ की। तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन तिब्बत का अलग है, अम्बू अलग है जिस क्षेत्र पर और खाम अलग है जिस क्षेत्र पर चाइना अपना कब्जा बताता है और यहीं से प्रवेश करके भारत से जो क्षेत्र छूटे हैं वहां पर अपना दावा करता है। आप इनके चिन्ह, इनकी भावनाएं इस स्लाइड्स में देख सकते हैं, इनकी मुद्राएं और मुद्राओं पे बने हुए चिन्ह देख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए संस्कृत का बहुत सारा साहित्य तिब्बत भाषा में अनुवादित किया गया। यहाँ तक कि कुछ कुछ साहित्य हमें संस्कृत का अभी नहीं मिलता है, उसका अनुवादित रूप हमें तिब्बत में मिलता है। तो क्यों ना कर हम कहें कि हमारा और तिब्बत का इतिहास एक है। मैं उसमें एक इतिहासकार का, एक साहित्यकार का वर्णन करना चाहूंगा, तारानाथ का। तारानाथ तिब्बत के एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने तंगयूर जैसी पुस्तकें लिखी हैं जिसमें हम मौर्यों का प्रशासन ढूंढ लेते हैं, जिसमें हम मौर्योत्तर काल, मौर्यों के उपरांत का पूरा प्रशासनिक तंत्र ढूंढ लेते हैं। तो हमारी सांस्कृतिक सामंजस्यता एक अखंडता में अगर बदल गई
और अपने आप में एक शक्ति बन गई, तो वहां चीन की विस्तारवादी नीति अपने आप ही पिछड़ जाएगी। इसी सोच के साथ हमने भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना करी, और ये स्थापना आज अपने पुरजोर पर है। आज की सरकार की इच्छा शक्ति भी प्रबल है। हम अब 1962 वाले भारत नहीं हैं। हम 65 और 71 में और 1999 में पाकिस्तान को हराकर ये दिखा चुके हैं कि आणविक शक्ति वाला भारत अब विश्व की महाशक्ति है। और भारत तिब्बत सहयोग मंच वास्तव में सिर्फ इसीलिए निर्मित हुआ है कि वो दलाई लामा नहीं, अपितु तिब्बत को पूर्ण रूप से गणतंत्रीय स्तर प्रदान करेगा, और अवश्य करेगा। हो सकता है इसमें जन क्रांति लानी पड़े, हो सकता है जनमानस को तिब्बत के बारे में बताना पड़े, हो सकता है जनमानस को तिब्बत और भारत के प्राचीन युग के संबंध बताने पड़े, जो कभी कभी ऐसा सुनकर लगता है कि कुछ लोगों को नहीं पता है। लेकिन भारत तिब्बत सहयोग मंच, जिसकी जिसको काफी बड़े स्तर पर जिनका चित्र आप देख रहे हैं, महामहिम ये आपके इंद्रेश जी हैं, एक 1999 से लगातार ये भारत तिब्बत सहयोग मंच के लिए काम कर रहे हैं, और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। और भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय स्तर के पंकज गोयल जी, और सबसे अग्रणीय रहने वाले इंद्रेश जी भारत तिब्बत मंच पर के लिए क्षेत्रीय, जिला स्तर, प्रांत स्तर और राष्ट्र स्तर पर, और मैं आगे बढ़कर बोलूं विश्व स्तर पर इतना कार्य कर रहे हैं कि भारत अब बहुत दूर नहीं है तिब्बत को आजाद कराने के लिए। तो हम सब भारतीय बस वचनबद्ध हो जाए, कटिबद्ध हो जाए। वी शुड बी डिटरमाइंड, वी शुड took an oath to just provide the freedom to the Tibet, as well as the republican status to the Tibet, and that would be the real ultimate goal of all Indians, to just release the Mansarovar and the Kailash, which is the actual pilgrim place of the all Hindus and all Indians. So सारे के सारे भारतीयों का वास्तविक वास्तविक धर्म स्थान मानसरोवर, यानी कि शिव की नगरी से जुड़का हुआ, हम जब कैलाश की आजादी की बात करते हैं तो उसका पहला लक्ष्य है तिब्बत की आजादी। यहीं से मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के लक्ष्य को समझ गए होंगे, और भारतीयों की भावना और भारतीयों के विश्वास को समझ गए होंगे। धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।